ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਝ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਝ ਮਨਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। 40 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, 40 ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। 40 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੁੱਲੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਉਟਣਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਨੇਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। दाना का मतलब दिलों की जानने वाला है जी। धन गुरु रामदास जी।
धन गुरु रामदास जी। बाबा तू ते सबके दिलों की जानता है, सबके दिलों की। मैं किसी से कोई बात छुपा सकता हूं मगर तुझसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं, तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कई बारी बंदा ना पाप कर्म जो होते हैं ना, पाप कर्म, कोई भी पाप है, धोखा करना है जी, किसी का धन हड़प लेना, कोई भी पाप कर्म, पाप कर्मों को बंदा ना दूसरे से बड़ी आसानी के साथ छुपा लेता है। सच्चाई है ना, अपने पाप कभी भी कोई किसी को नहीं बताता, दुनिया से पर्दा कर लेता है पापों का। मगर बाबा तू ऐसा है, मेरे पुण्यों के बारे में भी तू जानता है और मेरे पापों का भी तुझे इल्म है। हट पटन बिज मंदिर भन्ने, कर चोरी घर आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहां छुपावे। बंदा आगे पीछे देखता है पाप कर्म करने के वक्त। अच्छा दुकान पे जोड़ मैं ज्यादा लगाने लगा हूं, 500 ज्यादा आ जाए इसका, अच्छा ग्राहक देख तो नहीं रहा, उसको पता तो नहीं चलेगा। जोड़ तो लगा लिया, ग्राहक को नहीं पता चला, उसने दे भी दिए, मगर बाबे को पता चल गया, उसको पता है। अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहां छुपावे, तेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कट कट के अंतर की जानत, सारे बोलो ना, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो दिलों की जानता है। इस पर्दे के पीछे क्या हमें नहीं पता, मगर क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, मेरे गुर परमेश्वर गुरु रामदास को सब कुछ पता है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। दाना अंदर से जानने वाला, बिना देखने वाला, सबके अंदर वो देख रहा है। देखो हम जिधर भी बैठे हैं ना, गुरु पिता के हो सकता है कईयों को दर्शन ना हो रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी संगत अंदर बैठ रही, इधर भी बैठने की जगह नहीं, खड़ी है संगत। सुनियो, हम पीछे खड़े हैं, पीछे बैठे, गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, हम नहीं देख रहे मगर वो देख रहे हैं जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मैंने बिलासपुर में ये वचन सुनाया था, जिन्होंने लाइव देखा होगा उनको पता है। जब हम संगत में आते ना, संगत में कुछ ऐसी गुप्त रूहें भी हैं संगत में, शहीद सिंह भी हैं, गुप्त रूहें भी संगत में आके विराजमान होती हैं। हम तो उनको देख नहीं पाते मगर वो हमें जरूर देखती हैं। वाह वाह, वो गुप्त रूहें हमें जरूर देखती हैं, जरूर। और जब उनकी निगाह में हम आ जाते हैं ना, हमारे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप एक सेकंड में धोए जाते हैं। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इसीलिए तो मैं बार बार यही कहता हूं, संगत में आओ, समय से पहले आके आगे होके बैठो। गुरु की पहली निगाह, शहीद सिंहों की पहली निगाह हमारे ऊपर जावे है जी। जो दूर बैठा उनके ऊपर भी निगाह है, पर दिल करता है ना पहले मेरी तरफ देख लें है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लाखो न जी धन बाबा, देव सिंह जी। दिलों की जानने वाला भी वो, तू दाना तू बीना, देखने वाला भी वो, और सबके कामों को देखता है, देखता है मेरा गुरु, सारे गुण उसमें मौजूद। भगत जी कहते मैं विचार क्या करी, मैं कौन कौन से उसके गुण बयान करूं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहते नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी, कहते नाम देव के है खसम के खरी के परमात्मा, तू सबके ऊपर बख्शिशें करने वाला है, रहमतें करने वाला। कैसे कह रहे, पढ़े हो जी। तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शंद तो हरे। बोलो, तू दाना तू बीना,
मेचे स्वामी बखसंद तो हरे मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। पढ़ो मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधार। संगत बोले मेरे साथ मैं अंधले की वाह तेरा खुंद वाह मैं गरीब वाह तेरा नाम है आधारा। तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी मेरे बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी तन बाबा दीप सिंह जी तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी न में चे स्वामी बखसंद तू हरे पढ़ो तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे न में चे स्वामी बखसंद तो हरी मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधार। सारे कृपा करो अंधले की टेक गज के तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। गज के मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। जी तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी जी तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी मेरे बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी मेरे बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी वाह सारे वाह
कोई ढील ना करो। आपकी आवाज सारे संगत की आवाज आवे। और ऊंची मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। मैं अंधले की टेक सारे तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। चितन गुरु रामदास जी, गुरु राम बड़ी ताकत है इस नाम में, बोलो तन गुरु। और ऊंची बोलो तन मेरे बाबा दीप सिंह जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, मेरे बाबा दीप सिंह बोलो मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कई बारी मेरा दिल करता है मैं शब्द पढ़ता ही जाऊं, आप इसी तरह झूम झूम के पढ़ो। वाह वाह। सत श्री अकाल।
मगर संगत में हर तरह का जिज्ञासु आया होता है। किसी को वाहिगुरु वाहिगुरु के सिमरन में आनंद आता है, किसी को शब्द में आनंद आता है, किसी को कथा में आनंद आता है। तो यत्न होता है समय के दायरे में रह के हरेक जो संगत में आए हुए प्रेमी की असीस मेरी झोली में पड़ जाए। सिमरन वालों को उनका रस आवे, शब्द वालों को उनका, कथा वालों को उनका रस आवे। तो फिर इस कारण मुझे फिर थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है। आखो वाहिगुरु जी, नहीं तो दिल करता है पढ़ता ही जाऊं, शब्द पढ़ता ही जाऊं। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। नाम सिमरन पिताजी, तेरा नाम तेरा सिमरन मैं अंधे की लाठी है, मेरा सहारा है, सहारा। और जो प्रेमी कल आए थे उनको पता है, एक मैंने विचार प्रारंभ की थी सिमरन की अवस्थाएं। पहली अवस्था के ऊपर हम चल रहे थे गुरु की मेहर से। मैं कई बारी हैरान होता हूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ो, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में किसी लीडर की वडियाई नहीं, किसी शाहूकार की वडियाई नहीं है जी, किसी और व्यक्ति की वडियाई नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ो, गुरु की वाणी में वडियाई है गुर परमेश्वर निरंकार की, उसके नाम की सिमरन की, और जिन्होंने सिमरन किया है उन महापुरुषों की। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। गुरु परमेश्वर की निरंकार की वडियाई, नाम की वडियाई, और नामी जिसने नाम जपा उसकी वडियाई। और आप हैरान होवोगे, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। चढ़दी कला च हो। सत श्री अकाल। गुरु साहिब की वाणी पढ़ो, जिसके पास करोड़ों रुपये हैं, अरबों रुपये हैं, महाराज कहते वो पातशाह नहीं। पातशाह पता कौन? महाराज कहते जिसके पास नाम का खजाना है। जसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। असली पातशाहों का पातशाह वो है जिसके पास नाम का खजाना है, नाम का धन है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा, दीप सिंह फिर जी, आखो धन बाबा। दीप सिंह जी। मेरी बेनती एक बारी जोर से बोलो, धन बाबा। दीप सिंह जी। बड़ी ताकत है इस नाम में, बड़ी ताकत। आखो धन बाबा। दीप सिंह जी। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में गुर परमेश्वर निरंकार साईं की वडियाई, नाम की वडियाई, और नामी जिसने नाम जपा है वो महापुरुष की, करनी वाले गुर सिख की, उसकी वडियाई है। और पातशाह है वो जिसके पास ये नाम का खजाना है। और मेरी विनती, हम शुरू हुए थे पहली क्लास से कल, सिमरन करते हो, ये पहली अवस्था है। बंदा जब सिमरन करता है, लौंग जाप, बैखरी जाप। लौंग जाप का मतलब होंठ भी खिल रहे, जुबान भी खिल रही, आवाज भी आ रही। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। बैखरी जाप के अक्षर बिखर रहे हैं, सुन रहे हैं सारे, ऊंची आवाज में सिमरन हो रहा है। ये है लौंग जाप। और इस लौंग जाप में, बैखरी जाप में भी बहुत ताकत है। कल आपने सुना था कबीर केसों केसों कूकी है, ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। और तू कूकता जा, आवाजें लगाता जा, हाथा मारता जा, कभी तो सुनेगा ना, कभी तो सुनेगा ना। बाबा नंद सिंह साहिब का वचन कहते, अगर किसी व्यक्ति को उसका नाम लेके आवाज मारो, वो भी एक बार पीछे घूम के देखता, मुझे बुलाया। और तू गुरु को आवाज मारेगा, गुरु तेरी तरफ नहीं देखेगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा, दीप सिंह जी। धन बाबा। दीप सिंह जी। और जो पहली अवस्था में है ना, लौंग जाप करते हैं, बैखरी जाप करते हैं,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाय मुझे दूसरी अवस्था कब मिलेगी। ये परमेश्वर साईं का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक। जब तू प्यार में जुड़ी जाता है ना, जुड़ता ही रहता है, ऑटोमेटिक वो तेरी झोली में दूसरी अवस्था डाल देंगे। बाकी ये जो पहली अवस्था, सरदार रघबीर सिंह जी, उनकी पुस्तक है बंदगी नामा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर पूछ लूं चढ़ती कला चे हो। सरदार रघबीर सिंह जी बंदगी नामा पुस्तक में लिखते, कहते जो नाम जपने की शुरुआत की अवस्था है ना, शुरुआत की, जैसे बोल बोल के वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, कहते ये अवस्थाएं थोड़ी सी घबराहट वाली हैं, कठिन हैं। आखो वाहिगुरु जी। और कई बारी मन काला भी पड़ जाता है। काला, मैं हूं पंजाबी च काला पड़ जाता है कह रहा हूं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं कि मन जल्दी करता है, ऐसे बोल सकते हैं। हाय काला पै गया मन, मतलब जुड़ता नहीं, ऐसी अवस्था कठिन अवस्था है, घबराहट वाली अवस्था है, मन काला पैंदा है। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ये वचन सुन के जकारा भी आवे और आपके अंदर एक हौसला भी आएगा। कहते चाहे ये अवस्था घबराहट वाली है, कठिन है, मन जुड़ता नहीं, काला पड़ता है, कहते मगर एक बात का ध्यान रखो, जो हीरे हैं ना, हीरे वो पहाड़ों की चट्टानों के अंदर ही होते हैं। और उन हीरों को निकालने में मेहनत तो लगेगी ना, मेहनत तो लगेगी, तो मेहनत कर। एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है, मेहनत कर, वाहिगुरु वाहिगुरु वाह, मेहनत कर, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कहते जो हीरे हैं ना, हीरे वो पहाड़ों की चट्टानों में होते हैं, उनको निकालने में मेहनत तो लगती है। और दूसरा वचन कहते जो कीमती मोती है ना, कीमती मोती, जो कीमती मोती हैं वो समंदर की तह में होते हैं, डूंगाई में होते हैं। सिपियां तो ऊपर तरती हैं, ऊपर तैर रही हैं, मगर जो कीमती मोती हैं वो समंदर की गहराई में होते हैं। ओ प्यारेया, तू वाहिगुरु वाहिगुरु के जाप में लगा रहे, जो गुरु के अनमोल खजाने के मोती हैं, हीरे हैं, एक ना एक दिन तेरी झोली में खुद ब खुद पड़ने शुरू हो जाएंगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा, धन बाबा। ये पहली अवस्था, थोड़ा सा इसको मैं और खोलने का यत्न करूंगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी, उन्होंने ये बड़ा प्यारा जिक्र लिखा है। आज मन जुड़ेगा, पता नहीं कौन सी अवस्था गुरु ने देके भेजना है। दुनियावी स्कूल में जब बंदा पढ़ता है ना, एक के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास, तीसरी के बाद चौथी में जाता है, मगर ये गुरु नानक गुरु रामदास का स्कूल है। अगर गुरु नदर कर देवे, नर्सरी वाले विद्यार्थी को डबल एमए में भी डाल सकता है, एक मिनट में डबल एमए में। और अगर वहां पे पहुंच के कोई अहंकार करे तो डबल एमए वाले को सीधा नर्सरी में भी डाल सकता है जी, उसका ये सिस्टम है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। भाई वीर सिंह जी, उनकी किताबों में से ये जिक्र मिलता है। कश्मीर जा रहे थे भाई साहब, कश्मीर। अब बात सुने, रस्ते में रावलपिंडी एक परिवार के घर में रुके प्रसादे पानी के लिए। जब उस परिवार में रुके ना, तो उस परिवार की बहू आई भाई वीर सिंह जी के हाथ सुच्चे करवाने के लिए। जल लेके आई, हाथ धोइए, प्रसादा बाद में छकना, अपने हाथ सुच्चे करवाने लिए जल लेके आई। जब जल लेके आई ना, तो भाई वीर सिंह जी की कमाई बहुत थी,
उनकी किताबें कहीं पढ़ो, बड़े प्रेम के साथ गुरु का इतिहास लिखते हैं, बड़े प्रेम के साथ माहौल क्रिएट कर देते, क्रिएट, ऐसे लगता है हम उसी माहौल में चले गए, इतने प्यार से वो किताबें लिखी हैं उन्होंने। अब सुनियो, जब घर की बहू आई ना हाथ धुलाने के लिए भाई वीर सिंह जी के, कमाई बहुत थी, समझ गए, उन्होंने महसूस किया कि जो ये बहू आई है ना हाथ धुलाने के लिए, इसके चेहरे के ऊपर क्रोध है, क्रोध, और चेहरे के ऊपर क्रोध तभी आता जब अंदर भी होवे। आखो वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। चेहरा मुरझाया पड़ा है, मुरझाया, कल्पी पड़ी है। भाई साहब समझ गए अंदर से दुखी लगती है, दुखी दुखी। तो भाई वीर सिंह जी नाम की कमाई बहुत थी, उन्होंने अनुभव कर ली ये बात, क्योंकि कमाई वाले ये अनुभव कर लेते हैं, इसको क्या परेशानी है, क्या दुख है, अनुभव हो जाता है। अब इन्होंने हाथ धोए, प्रसादा छकिया, और भाई वीर सिंह जी के इस गुरमुख के हृदय में ना दया आ गई। दया क्या आई? कहते इस घर से कुछ दाने हमने छके हैं अन्न के, अन्न खाया है इस घर का। कहते बाबा मेहर कर, कृपा कर, इस दुखी आत्मा को भी कोई ना कोई मंजिल मिल जाए, ये भी तेरे नाम के साथ जुड़ जाए। ये दया आ गई कि इस घर से मैंने कुछ खाया है, अन्न के दाने अपनी जुबान को लगाए हैं, महाराज कृपा करनी, मेहर करनी, ये भी नाम से जुड़ जाए। और भाई वीर सिंह जी ना उस औरत से पूछते, उसको पास बुला के, क्योंकि उसका पति चढ़ाई कर चुका था, पति की डेथ हो चुकी थी, बेवा थी, छोटी उम्र में शादी हो गई, बेवा थी, जिंदगी से कल्पी पड़ी थी, हालातों से कल्पी पड़ी थी। तो भाई वीर सिंह जी जब उसको अपने पास बुलाया ना, कहते क्या मुश्किल तुझे? उसने सारी बात बताई, ऐसे मैं बेवा हूं, जो मेरी सास है ससुर है मुझे पूछते नहीं, घर में बड़ी परेशानी है, हर वक्त कल्पी रहती हूं। तो भाई वीर सिंह जी ना उस वक्त उसके ऊपर दया आई और गुरु के चरणों का ध्यान धर के अरदास की, महाराज 3-4 मिनट इसके साथ लगाने लगा हूं, बात करने लगा हूं, कृपा करो, इसको मैं जोड़ने लगा हूं, मेरे बोलों में, मेरी बात में कृपा करके गुरु नानक जी आप बस जाना। खो वाहिगुरु जी, मैं जरिया बन जाऊं इसको जोड़ने का, आप कृपा करना। और सच्चाई है, जब कोई गुरमुख आत्मा, मान लो किसी गुरमुख आत्मा ने कीर्तन करने बैठना है ना, 5 पौड़ियां पढ़ के अरदास करके वो गुरमुख जन बैठते, महाराज तेरी कृपा से बैठने लगाऊं, लोगों को चेहरा तो मेरा नजर आएगा मगर कृपा तो तेरी चलेगी ना, कृपा तो तेरी काम करेगी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जो गुरमुख जन है अपने आप को आगे नहीं रखते, अपने मालिक को, अपने गुरु को आगे रखते हैं। भाई वीर सिंह जी क्या अरदास करते, महाराज 3-4 मिनट इसके साथ मैं लगाने लगा हूं, जोड़ने का यत्न करने लगा हूं, गुरु बाबा नानक मेरी बातों में आप बस जाना, मेरी जुबान पे आप बैठ जाना। तो भाई वीर सिंह जी ने अरदास करके बात पता कैसे शुरू की? कहते बच्चिए, लफ्ज़ सुनने वाले, कहते बच्चिए किसी ने तेरे लिए संदेशा भेजा है, सुनिया भेजे है, संदेशा भेजा है, किताबों में ये वचन लिखे। कहते बच्चिए किसी ने तेरे लिए संदेशा भेजा है। तो आगे वो पता क्या कहती, घर की बहू कहती मुझे जली हुई को किसने संदेशा भेजना है? कह दो वाहिगुरु जी, मुझे जली हुई को किसने संदेशा भेजना है? मन टूटा पड़ा था उसका, कहती मुझे जली हुई को किसने संदेशा भेजना है? कहने लगी मेरा तो अपना कोई है ही नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी।
मेरा तो कोई दुख बांटने वाला नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई दर्द बांटने वाला नहीं, मुझ जली हुई को कौन संदेशा भेजेगा। भाई वीर सिंह जी कहते बच्चिए तेरे लिए किसी ने संदेशा भेजा है। कहती मेरा तो कोई है नहीं। भाई वीर सिंह कहते जिसने तेरे लिए संदेशा भेजा वो सबका ही अपना है जी, वो सबका ही अपना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, वो सबका ही प्यारा है। आगे वो बहू कहती कौन है वो, किसने संदेशा भेजा है, कौन है सबका प्यारा, कौन है सबका अपना, कौन। तो भाई वीर सिंह जी कहते जो सबका प्यारा है, सबका अपना है, उसका नाम है धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो गुरु नानक जो सबका अपना है, सबका प्यारा है, उसने तेरे लिए संदेशा भेजा है। तो आगे कहती कौन सा संदेशा भेजा है। अब बात सुनने वाली, कौन सा संदेशा भेजा है। भाई वीर सिंह जी कहते गुरु नानक साहब ने तेरे लिए संदेशा भेजा है कि तुझे धरती पे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा। पति मर चुका और हर वक्त वही ख्याल चलते थे अंदर। सुनियो, कहते गुरु नानक ने तेरे लिए संदेशा भेजा है कि धरती पे तुझे केवल बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं भेजा। गुरु नानक साहब ने तेरे लिए संदेशा भेजा है कि तुझे धरती पे केवल बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं भेजा, तुझे धरती पे भेजा है नाम जपने के लिए। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तो वो इतनी कल्पी पड़ी थी। आगे कहती नाम क्या होता है, नाम कैसे जपा जाता है, नाम क्या होता है। देखो इसीलिए तो गुरमुख जन यही बात रोज बोलते हैं, जो भी होवे ये सत संगत कभी भी हाथों से निकलने ना दो। ये संगत की घड़ियां हाथों से गवाचने ना दो। संगत में आके जीवन बनता है, अगली मंजिल मिलती है। मुझे बड़ी खुशी होती जो संगत में आने की रूटीन निभाते हैं ना। मैंने कल भी बोला था, ये बच्चा शीश गुरु की मेहर से बंबई से आता है, जिधर मैं जाऊं उधर पहुंच जाते प्यार वाले, कितनी कितनी दूर से आते हैं प्यार वाले। अभी 20 मई को रैन सभाई समागम हमने रखा था गुरु की मेहर से, पौविंड साहब बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान पे। और मेरी रूटीन है, मैं संगत को 3 से 4 वाले प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर देता हूं। कोई हम बोर्ड नहीं लगाते, कोई मैसेज नहीं करते, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने उन्होंने उसमें मैसेज करते हैं बस, और कोई बोर्ड नहीं, मैंने बस संदेशा देना। तो मैंने यही बात बोली कि बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान आओ सारे दर्शन दो। मन में सोचा था 3000 संगत का प्रबंध वहां पे कर लेते हैं, गुरु की मेहर से 3000 संगत बहुत होती। 10,000 संगत आ जाए, लोग कहते जी 50,000 आई, 3000 संगत बहुत होती। मैंने मन में ये सोचा 3-4 हजार संगत, उसी हिसाब से हमने लंगर का प्रबंध कर लिया सब कुछ। मगर वो प्रोग्राम देखना रैन सभाई 20 मई का 25,000 से भी ज्यादा संगत तक होता न इतना 10,000 संगत बैठने का अंदर हॉल था, वो भी फुल। 3-4 हजार संगत गैलरी में बैठ जाती, वो भी फुल। इतनी संगत ही बाहर ग्राउंड में, महाराज की कृपा से 30-40 एकड़ वो जगह है पौविंड साहब की, बहुत बड़ी जगह। और बाहर ग्राउंड में भी संगत, अंदर भी, हर जगह पे संगत। जहां से हमने प्रबंध किया था 5 बसों का, वहां से 20-20 बसें हो गई एट ए टाइम। लंगर की वहां पे ऐतिहासिक स्थान है, लंगर की मशीनें बहुत, क्योंकि एतवार रविवार के दिन वहां पे 2-3 लाख संगत आती रूटीन में। वो सारी मशीनें पड़ी एकदम, वो भी चलानी पड़ गई। कहाँ 3000 मन में सोचा, कहाँ 25,000 से ज्यादा इकट्ठ महाराज की मेहर से। और मैंने जब संगत से पूछा कहाँ से आए, कोई कहता मैं रायपुर से, कोई मैं मुंबई से आया हूँ, कोई कहता मैं आगरे से आया, कोई कहता मुरादाबाद से, कोई कहता फलानी, दूर दूर से संगत। मन मेरा इतना खुश हुआ, मैंने कहा शुक्र है इनको संगत में आने की भूख लग रही है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी।
धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास ये जी। संगत में आने का समा, मैं ये बात कर रहा था, कभी भी खास से जाने मत दिया करो। संगत में आके अगली अवस्थाएं मिलती हैं, संगत में आके शहीद सिंह वर्तते हैं, संगत में आके गुरु की बख्शिश वर्तती है। प्यारेओ, जो संगत में आता है ना, शहीद सिंहों की बख्शिश भी उसकी झोली में पड़ती, गुरु रामदास की बख्शिश भी झोली में पड़ती। और संगत में आके जो दूध मांगता है उसको दूध मिलता है, पुत्र मांगता है पुत्र मिलते हैं। घर की गरीबी दूर करवाने की कोई विनती करता है, वो मांगता है उसको वो मिलती है चीज। कारोबार मांगता है कारोबार मिलते, और जो संगत में आके गुरु को मांगता है गुरु भी उसको मिल जाता है। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। देखो, जो संगत में आके आप बोलते हो ना, अंदर से मांगते, गुरु सबकी उसी प्रकार झोलियां भरता है। संगत में आके गुरु को मांगो, गुरु के प्यारों को मांगो, फिर कोई कमी नहीं रहती। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। बात सुनियो, भाई वीर सिंह जी ने ये बात बोली, कहते बच्चिए तेरे लिए गुरु नानक ने संदेशा भेजा, तुझे धरती पे बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं भेजा, नाम जपने के लिए भेजा। कहती नाम क्या होता है, कैसे जपा जाता है? तो भाई वीर सिंह जी ने उसको पास बुलाया और वाहिगुरु का उच्चारण किया और उसको नाम जपने का ढंग बताया। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास 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 जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा देव सिंह जी। उसको नाम जपने का ढंग बताया। नाम दान तो 5 प्यारे देते, मगर उसको ढंग सिखा दिया। इदा जप, वाहिगुरु ऐसे सिमरन कर, ऐसे जोड़। सुनियो, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। चढ़दी कला च हो। सत श्री अकाल। अब जब उसको नाम जपने का ढंग बताया, प्रेरणा दी, ये प्रेरणा देके भाई वीर सिंह तो चले गए, मगर वो जो औरत, क्योंकि देखो बातें तो वही हैं। कोई आम बंदा बोले भाई नाम जपया कर, कोई नहीं जपेगा, मगर कोई बंदगी वाला बोले ना, बंदगी वाला जो जपता है, उसकी कही हुई बात का असर ही कुछ और होएगा। बात तो वही है। पिस्टल में गोली होती ना, जो गोलियां 3-4 मेरे पास आ जाएं, मैंने ऐसे पकड़ी, ऐसे फेंक दी, पत्थर बजा, गोली बजी, एक बराबर, ऐसा ही होगा ना। मगर वही गोली अगर पिस्टल में भर के मारी जाए, सामने वाले की जान निकल जाती। गोली तो वही है, बातें तो वही हैं। कोई आम बंदा करे बात का असर कुछ और, जब कोई कमाई वाला बोलता है ना, उसकी बात हृदय तक पहुंच कर जाती। भाई वीर सिंह जी कमाई वाले थे। अब देखो, गनका के पास वो महापुरुष गए थे ना, तोता ही दिया था ना, भाई राम राम जपाया कर। अब आप तोता लेके आओ, राम राम जपाओ, उधार हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। 2 मिनट जप लेगा, 4 मिनट जप लेगा, 2 बारी जप लेगा, 10 बारी जप लेगा। रूटीन अगर बना लोगे आप, इतना ही सारा दिन जपे वाहिगुरु नहीं हो सकता। असलियत में महापुरुषों ने उसको तोता नहीं दिया, उसके साथ अपनी कमाई भी दे दी थी। कमाई कि बाबा तोता तो जरिया है, कृपा तो तेरी बरतेगी। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। वो कमाई वालों ने कमाई का किणका दे दिया। इसी तरह भाई वीर सिंह जी ने अपनी कमाई का किणका दिया, वो तो चले गए। अब ये बैठती है घर में और जपती वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब जब जपना शुरू किया ना, कुछ महीनों में ही इसकी जो अंदर की कल्पना थी ना, वो खत्म हो गई। अंदर ठहराव आ गया, शांति आनी शुरू हो गई। और कुछ समय के बाद भाई वीर सिंह जी के साथ इसका फिर मिलाप हुआ। तो भाई वीर सिंह जी कहते कैसे चल रहा है? कहती अंदर बड़ा ही खेड़ा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, कल्पना मुक गई। मगर अब एक मुश्किल है,
भाई वीर सिंह कहते कौन सी मुश्किल? कहती जो मेरा ससुर है वो मुझे खाना नहीं देता, रोटी नहीं देता। तो भाई वीर सिंह पता क्या कहते? कहते किसी का बुरा नहीं मांगना। ससुर अगर खाना नहीं देता ना तो बुरा ना मांग, पढ़ाई कर। उम्र छोटी थी पहले समय में, आपको पता छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। कहते पढ़ाई कर, पढ़ाई करके नौकरी कर ले। अब एक नाम जपने वाले ने यह वचन किया, इसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कई हंसते हैं, हंस रहे, इस उम्र में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, वो परवाह नहीं करती। इसने पढ़ाई लिखाई शुरू की, अच्छे नंबरों से पास होना शुरू हो गई। समा आया प्यारेओ, इतिहास में लिखा है, इस जिक्र में लिखा है, जब ये पास हुई तो लोग ताने देने लग पड़े, अब तुझे नौकरी कौन देवेगा? आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। तो इसने अप्लाई किया नौकरी के लिए। 2000 बंदों ने अप्लाई किया, 100 बंदों को नौकरी मिलनी थी। 100 नौकरियां थी, अप्लाई करने वाले 2000। तो प्यारेओ सारे हंसते थे, इसको नौकरी कैसे मिलेगी, तुझे नौकरी कौन देगा? मगर ये बैखरी जाप, लौंग जाप के सदका 100 बंदों की वो नौकरी थी। 2000 बंदों ने अप्लाई किया था, 2000 बंदों ने। मगर गुरु ने कृपा की, इस जाप का सदका इसको अच्छी नौकरी भी मिल गई। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और इसको इतना विश्वास आ गया वाहिगुरु सिमरन के ऊपर कि जिस सिमरन ने मेरी कल्पी हुई को अंदर से शांति दे दी, मुझे नौकरी दे दी, अब वही वाहिगुरु का सिमरन मैंने सारी जिंदगी करना है। इस सिमरन को मैंने छोड़ना नहीं। जिस सिमरन का सदका गुरु ने अब तक मेरी पैज रखी, आगे भी वही रखेंगे। आखो वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ये बैखरी जब पहली अवस्था, होंठ भी खिलते, जुबान भी खिलती, इसमें भी बड़ी ताकत है। अगर नहीं जपते रसना से, मारे कहते रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए। तिल कितना होता है? कहते तिल तिल करके जुबान काटी जाती है अगर नाम नहीं जपते जुबान से। रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए, हर हां जब बिसरे गोबिंद राय, दिनों दिन कटिए। ये मेरी बेनती, आज संगत में आए हो भाई मेहरमान सिंह जी महापुरुषों का जन्मदिन है। गुरु के आगे झोलियां बिछा के जाना, बाबा ये नाम की रंगत के साथ मुझे भी रंग ले। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा। मैंने शब्द दूसरा पढ़ना था, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, मगर समा अपनी रफ्तार से भाग रहा है। और मेरा स्वभाव सबको पता है, ना लेट शुरू करना ना लेट समाप्ति। आओ जे तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी। पढ़ो, जब मैं बेनती करूंगा फिर उसी वक्त ये बरखा भी करियो फुल्लां दी। हमारा जो प्रकरण था वो पहली अवस्था पे रह गया, दूसरी अवस्था पे नहीं पहुंच पाए। दोनों प्रोग्रामों में बस पहली अवस्था का जिक्र हुआ। गुरु मेहर करे जब समा बना तो अगली अवस्थाओं का भी जिक्र करेंगे। जे तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। आखिरी लाइन वो मैं सिंधी में पढ़ूंगा, सारे मेरे साथ बोले हो। कृपा कई गले सा लगायो। बोलो, गुरु नानक कृपा कई गले सा लगायो।
प्यार जे एहरो न मिलंदो प्यार असां रुली वेंदा सी जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदा सी असां रुली वेंदा सी असां रुली वेंदा सी जे तू न जलींदे बोल जे तू न जलींदे असां रुली वेंदा सी जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदा सी असां रुली वेंदा सी असां रुली वेंदा जी गुरु रामदास जी तुहाडी जय होवे 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 ओ जय होवे तुहाडी जय होवे जय होवे तुहाडी जय होवे ओ जय होवे तुहाडी जय होवे जय होवे तुहाडी जय होवे बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे जी बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे ओ जय होवे तुहाडी जय होवे जय होवे तुहाडी जय होवे ओ जय होवे तुहाडी जय होवे जय होवे तुहाडी जय होवे बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे गुरु रामदास जी तुहाडी जय होवे गुरु रामदास जी तुहाडी जय होवे सत श्री अकाल सत श्री अकाल कीर्तन की समाप्ति। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं अज मैं ਵਧਾਈ देण वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी गुरु पिता जी ने किरपा की है। सारी संगत ने असीस दी। जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की किरपा दे नाल जा चुकी जो तुसी किणका किणका देते हो क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती। 25,000 गज जगह और 2500 रुपये गज की सेवा तो अद्धी पेमेंट जी उहदे लई असी उन्हां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जी 20 अप्रैल नूं होनी सी। अद्धी पेमेंट चली गई। हुण जी अद्धी पेमेंट है वो 20 जुलाई तक असी उन्होंने देनी है और फिर उस तो बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ बिल्कुल नेड़े आ उहदे मुहूर्त दे समय दे और नाल ही जो संगत की रिहाइश वास्ते सराह बन रही है उहदा कारज भी पूरी तेज़ी नाल चल रहा और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी उत्थे भी बड़ी तेज़ी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके हैं। हर पक्ष तो मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा। मेरी बेनती है भुलिओ ना 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की वही रजिस्ट्री होएगी। अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ भी दिओ एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो
ਔਰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਦਾਨ, ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 98 150 99 513 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 9815089513 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਔਰ ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ 113 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵੀ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸਰਾਂ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, 200 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, 500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ, ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਈਏ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗੀ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।